Very good morning, students. I hope you all are doing well. So today we are going to start with the eighth lesson, which is algorithm and flowchart. Now, in this chapter, you must know what is algorithm and what is flowchart. So, algorithm is basically a set of instructions which are used to solve a particular task or a problem. So, algorithm takes some input, processes, and provide the desired output. And flowcharts are the easy representations of complex information and data. Now, in this, we will be covering few topics, which is role of algorithm in our life, algorithm in computer science, characteristics of an algorithm, how to design an algorithm, advantages and disadvantages of algorithm, flowchart, advantages of flowchart, difference between algorithm and flowchart. So these are the topics which we are going to cover in our lesson. So first we have an activity which says write the steps how to brush in the morning in your own words. Now what we have to do is we have to write 7 steps in which we can brush our teeth in the morning. So the first step can be take your brush and toothpaste. The second can be turn on the water or turn on the tap and clean your brush. The third can be apply toothpaste on your brush. The fourth will be brush your teeth upside down. The fifth can be brush your tongue, brush your tongue. The sixth can be, the fifth step can be spit and rinse. And the seventh will be clean your brush. So, like this, these are the 7 steps, or this is a set of instructions which are the solution for brushing your teeth. So, this is how an algorithm works. Now, an algorithm is a set of well-defined instructions to solve a particular problem. तो algorithm क्या होता है? ये set होता है well-defined instructions का, which are used to solve any particular problem. It takes a set of inputs and produces the desired output. तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को लेता है और एक डिजायर्ड आउटपुट हमें देता है. An algorithm generally has finite number of steps and is frequently involved repetition of an operation. तो एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब देयर आर लिमिटेड एंड काउंटेबल स्टेप्स, और वो क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व करते हैं रिपीटेशन को किसी भी ऑपरेशन के. It is not just used in mathematics and computer science but are also used in our daily life. Let's see how. देखो एल्गोरिदम सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में ही यूज नहीं होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन आवर डेली लाइफ. नाउ रोल ऑफ एल्गोरिदम इन आवर लाइफ. Let's see how algorithm plays some role in our life. Algorithms are fundamental to computational thinking and problem solving in many aspects of life. देखो एल्गोरिदम क्या है? वो फंडामेंटल है हमारी कॉम्पिटेशनल थिंकिंग के लिए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स. Let's see few examples of algorithm in our daily lives. Take for instance the task of making cheese.
sandwich. Now the algorithm here would be the set of instructions one should follow to make the sandwich. Now we are taking one example of making a cheese sandwich. In this, we will be following some steps. We will be seeing how an algorithm works for this kind of task. Now, this will involve few steps, which is get two slices of bread and knife. What we need is two slices of bread and a knife. Step 2, spread sandwich spread on the breads evenly. Now what we have to do is we have to spread the sandwich spread on the breads evenly. Then the third will be add toppings of vegetables on your one slice. अब हम क्या करेंगे, अपनी one slice पे अपनी toppings को वहाँ पे add करेंगे. It is also specific that on one slide every detail is very important. Now fourth is put cheese slice on this one slice. Now what we have to do is we are making a cheese sandwich. So what we are going to do is we will put a cheese slice on the bread. Put on top the much empty slice of bread on the other. फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी empty slice of bread है उसको दूसरे के ऊपर रख देंगे and our sandwich is ready. Following the above instructions would produce the desired result and solve your problem. तो हमने ये जो instructions पढ़े हैं इनको solve करके हम एक अच्छा सा sandwich prepare कर सकते हैं and हमारे जो desired output है, जो result है वो हमें मिल जाएगा. Similarly, let's look at another example to ride a scooty. अब हमें स्कूटी चलानी है, उसके लिए हमारे क्या स्टेप्स होंगे, उसके लिए हमारा एल्गोरिथम क्या हो सकता है. गेट ऑन योर स्कूटी. सबसे पहले स्कूटी चलाने के लिए हमें स्कूटी पे बैठना पड़ेगा, तो गेट ऑन योर स्कूटी. स्टेप 2, रिमूव द किक स्टैंड यूजिंग योर लेफ्ट फुट. दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट यूजिंग द लेफ्ट foot, what we are going to do is we're going to remove the kick stand. Then step 3, now insert the key in your scooty and rotate the switch or your scooty on. So switch your scooty on. Now what we are going to do is we're going to put the key of a scooty and we're going to rotate it so that it will be on. Step 4, hold the brake lever with your left hand and press the start button to ignite and start the engine. Now what we are going to do is we have to make the engine get started. So for that हम लोग क्या करेंगे, हम left hand से brake को press करेंगे and right hand से we gonna press the start button so that our engine will get started. Step 5, once the engine starts, release the brake levers and slightly turn the acceleration and the scooty will start moving. फिर हमें क्या करना है, हम जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा हमें अपने ब्रेक्स को छोड़ देना है और हमें क्या करना है, स्लाइटली टर्न करना है एक्सीलेटर को, तो हमारी जो स्कूटी है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. Step 6 is when it starts moving, pick up your feet and from the ground and place them on the scooty's foot platform. फिर हमें क्या करना है, जब हमारी स्कूटी चलने लग गई है तो हमें अपने पैरों को ग्राउंड पे से हटा के स्कूटी का जो फुट प्लेटफॉर्म है वहां पे उनको प्लेस कर लेना है. स्टेप 7, टू टर्न द स्कूटी लीन ऑन ईदर साइड एंड हैंडल विल टर्न ऑलमोस्ट ऑन इट्स ओन. अगर हमें अपनी स्कूटी को टर्न करना है, सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना slide a little bit, we're gonna tilt a little bit on the either side जिधर हमें टर्न लेना है और जो हमारा हैंडल है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ टर्न हो जाएगा. However, when the scooty is going slow, turn the handles using your hand. लेकिन अगर हमारी स्कूटी स्लो चल रही है तो हम अपने हैंड्स की मदद से भी अपने हैंडल को रोटेट कर सकते हैं. Step 8, holding both brakes while braking is considered the safest and fastest way to stop the vehicle. अगर हम अपने दोनों हैंड्स से दोनों ब्रेक्स को प्रेस कर देते हैं तो इट इज द सेफेस्ट वे कि हम अपनी स्कूटी को, अपने व्हीकल को इजीली स्टॉप कर सकें. Now, algorithm in computer science. An algorithm is an instance of logic written in software by software developers in computer system. देखो, कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम की क्या वैल्यू है. कंप्यूटर साइंस के अंदर जो एल्गोरिदम होता है वो एक लॉजिक होता है, जिसे कौन लिखता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. इट मीन्स फॉर द इंटेंडेड कंप्यूटर टू प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट. यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो गिवन इनपुट है उसके हिसाब से प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है. अ कंप्यूटर नीड अ प्रोग्राम टू डू अ टास्क. कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए किसी भी टास्क को करने के लिए. प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सीक्वेंसेस.
After writing a program, the computer runs, reads the program and executes the command shared it in it by following each steps mechanically to complete the task. देखो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर को जब हम प्रोग्राम लिख देते हैं तो कंप्यूटर रन करता है, रीड करता है उस प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को जो हमने उसके अंदर मेंशन करी है बाय मैकेनिकली, ताकि वो क्या कर सके, उस टास्क को कंप्लीट कर सके. The series of interrelated commands or instructions or steps is known as computer algorithm. जो सीरीज होती हैं, इंटर रिलेटेड कमांड्स होती हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम हम उनको कहते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम. एक एल्गोरिदम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहला इज फाइनाइटनेस. An algorithm should have finite number of steps and it must be and after a finite time. देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एक एल्गोरिदम की ये होती है कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ताकि वो एक लिमिटेड टाइम में ही फिनिश हो सके. देन इनपुट. एन एल्गोरिदम में कंटेन मैनी इनपुट्स और नो इनपुट्स एट ऑल. एक एल्गोरिदम के अंदर या तो बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई इनपुट ही ना हो. Then effectiveness. Each step of algorithm must be simple and should take a definite amount of time. मतलब हमारे एल्गोरिदम के अंदर जो भी स्टेप्स हम लिख रहे हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लेने चाहिए. देन डिफाइन definiteness. There should be no ambiguity. It means each step must be clear, well defined and precise. यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड वेल डिफाइंड. हमें इजीली समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज रिटन इन द स्टेप. देन फिफ्थ वन इज आउटपुट. एन एल्गोरिदम शुड रिजल्ट एट लीस्ट वन आउटपुट. मतलब हमारा जो एल्गोरिदम है वो कम से कम एक आउटपुट तो हमें प्रोवाइड ही करे, ये हमारी उससे डिमांड होती है. नाउ हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को कैसे डिजाइन करना है. The following things are to be considered to write an algorithm. The problem must be solved by this algorithm. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे एल्गोरिदम से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए. The time limitation of the problem must be considered while solving the given problem. जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसका टाइम भी कंसिडर करना चाहिए कि कितने टाइम लिमिटेशन में हमें इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है. द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमें इनपुट लेना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट लेना है. व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड द आउटपुट शुड बी एक्सपेक्टेड. और अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन आउटपुट विच इज प्रोवाइडेड बाय द एल्गोरिथम. द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इन द गिवन लिमिटेशंस. मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का वो कहाँ पे होता है, हमारी गिवन लिमिटेशंस में ही वो प्रेजेंट होता है. Advantages and disadvantages of algorithm. Advantages. An algorithm follows a definite procedure. Algorithm क्या follow करता है, एक definite procedure follow करता है. मतलब there are limited steps, there are limited and finite steps in the algorithm. It is easy to understand. हमारा जो algorithm है उसमें कोई ambiguity नहीं होती, वो बहुत easy, simple होता है, understandable होता है और well defined उसके अंदर steps होते हैं, तो वो कैसा होता है, easy होता है समझने के लिए. It is a stepwise representation of a solution to the given problem. ये हमारी किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक सेट ऑफ stepwise representation होता है उसके सॉल्यूशन का. In an algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps. Hence, it is easier for the programmer to convert it into actual program. मतलब हमारा जो एल्गोरिदम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है कि वो एक्चुअल प्रोग्राम क्रिएट कर सके. एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिदम हैज इट्स लॉजिकल सीक्वेंस, सो इट इज इजी टू डीबग. हमारा जो एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाता है उसको डीबग करना. नाउ डिसएडवांटेजेस. Following are the disadvantages of algorithm. Algorithm takes time to develop and large problems or tasks are difficult to put in algorithms. देखो algorithms develop करने के लिए टाइम लेते हैं और दूसरी बात कि अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या टास्क है
तो हम उसको इजीली एल्गोरिदम के अंदर पुट नहीं कर पाते. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिदम्स. हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एल्गोरिदम्स के अंदर ब्रांचिंग को या फिर लूपिंग को शो करें. अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिदम्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट. अगर हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें बड़े या डिफिकल्ट टास्क को, तो वो हमारे लिए कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसीजर. तो उन बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क में इतने सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस. फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का. इट ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल. हमारे प्रोसेस के अंदर हर एक जो स्टेप है वो एक डिफरेंट सिंबल से हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड कंटेन्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप. और वो क्या कंटेन करता है? वो हमारे प्रोसेस के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेप का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन अपने अंदर कंटेन करता है. द फ्लोचार्ट सिंबल्स आर लिंक्ड टुगेदर विद एरोज शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन. मतलब हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर वो एक एरो से कनेक्टेड होते हैं, एक एरो से कि हमें पता चल जाता है इसके बाद ये, इसके बाद ये. तो वो क्या करते हैं, हमें प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन को शो करते हैं. कॉमन फ्लोचार्ट सिंबल्स. हमारे पास कौन कौन से फ्लोचार्ट सिंबल्स हैं? डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लोचार्ट हैव डिफरेंट मीनिंग्स. हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं फ्लोचार्ट के, उनकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है. द मोस्ट कॉमन सिंबल्स आर टर्मिनेटर. सबसे पहला जो हमारे पास कॉमन सिंबल आ जाता है यहाँ पे, विच इज टर्मिनेटर. An oval shape indicating the start or end of the process. It is used to show the start and stop point of a flowchart. देखो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है टर्मिनेटर. ये क्या करता है? ये हमारे प्रोसेस की स्टार्टिंग और प्रोसेस की एंडिंग, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो रहा है, ये वहां पे हम इसको यूज करते हैं. देन सेकेंड इज प्रोसेस. A rectangular shape indicating a normal process flow step. This is the most common symbol used in flowcharts. देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या सिंबल है? ये हमारे लिए प्रोसेस का सिंबल है. ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है नॉर्मल प्रोसेस फ्लो स्टेप. तो इसलिए ये क्या है, एक बहुत कॉमन सिंबल है जो हम फ्लो चार्ट के अंदर यूज करते हैं. थर्ड इज डिसीजन. अ डायमंड शेप इंडिकेटिंग अ ब्रांच इन द प्रोसेस फ्लो. ये क्या करता है? ये एक डायमंड शेप का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजन बोलते हैं. अ डायमंड शेप इंडिकेटिंग अ ब्रांच इन द प्रोसेस. ये क्या करती है? ये हमारे प्रोसेस के अंदर ब्रांच को इंडिकेट करती है. इट इंडिकेट्स अ क्वेश्चन और ब्रांच इन द प्रोसेस फ्लो. ये क्वेश्चन या फिर ब्रांच को हमारे प्रोसेस फ्लो के अंदर इंडिकेट करती है. इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू ऑप्शंस, येस और नो. और इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास बेसिकली दो चॉइसेस होती हैं या दो ऑप्शंस होते हैं, दैट येस और नो. नाउ व्हाट इज कनेक्टर? A small labeled circular shape used to indicate a jump in the process flow. देखो कनेक्टर क्या है? एक सर्कुलर शेप. ये जो सिंबल है ये कनेक्टर का होता है हमारे फ्लो चार्ट के अंदर. ये क्या करता है? अ स्मॉल लेबल्ड सर्कुलर शेप यूज टू इंडिकेट अ जंप इन द प्रोसेस फ्लो. मतलब हमारे प्रोसेस फ्लो में कहीं पे भी अगर जंप लेना है, हमें जंप आ रहा है, तो हम उसके लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. Now data. A parallelogram indicates data input or output for a process. प्रोसेस के अंदर इनपुट और आउटपुट जस्टिफाई करने के लिए वी हैव अ पैरेललोग्राम. नाउ डिस्प्ले. द सिंबल सिग्निफाइज दैट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड टू यूजर. और ये हमारे पास जो ये सिंबल है ये डिस्प्ले का सिंबल होता है. मतलब ये सिग्निफाई करता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर को डिस्प्ले कर दी गई है. Here are some examples of flowchart given. Flowchart to drink a glass of water of cold water. देखो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किया है, फ्लोचार्ट क्रिएट करा है टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ठंडे पानी का ग्लास हम पी रहे हैं. तो हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले और लास्ट में हमें कौन सा साइन मिल गया? सबसे पहले और लास्ट में वो मिला जो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट और एंड पॉइंट बताता है. देन वी हैव द रेक्टेंगुलर्स which says go to the kitchen, take a clean glass. ये बेसिकली नॉर्मल प्रोसेसिंग को हमें बताता है. देन टेक आउट अ वाटर बॉटल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, pour the water into the glass, drink the water, fill the bottle and keep it back in the refrigerator. यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं आए जिसके लिए हमने डायमंड वाले सिंबल को यूज नहीं करा. यहाँ पे हमारे पास कोई जंप नहीं आया
जिसके लिए हमने कनेक्टर को यूज नहीं करा। सो दिस वाज अ नॉर्मल फ्लो चार्ट जिसमें हमने स्टार्टिंग, एंडिंग और बेसिक उसका प्रोसेस शो किया। नाउ फाइंड द सम ऑफ 40 एंड 60। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 40 एंड 60 में हमारे पास स्टार्ट है, एंड है, बीच में हमने क्या किया, रीड एक्स, रीड वाई, दो हमारे पास नंबर्स हैं। फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या लिखा, रीड एक्स, रीड वाई। फिर रेक्टेंगल के अंदर हमारा आया कैलकुलेट सम एज एक्स प्लस वाई। फिर हमने क्या करा, हमें जो हम डिस्प्ले करते हैं अपने यूजर को, वो हमने सिंबल यूज किया प्रिंट सम और एंड। तो स्टार्ट, रीड एक्स की जगह पे हमारा क्या है 40, वाई की जगह पे 60, सम में 40 प्लस 60, और हमारा जो रिजल्ट है जो हमारे यूजर को डिस्प्ले होना है विच इज 100। तो दिस इज हाउ एन एल्गोरिथम वर्क्स। लेट्स टेक एग्जांपल 3, फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या फ्लो चार्ट होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विल बी सेम इन ईच एंड एवरी फ्लो चार्ट। फिर यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम के अंदर रखा रीड पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम। यहाँ पे हमने जस्टिफाई करा है कि हमारे कौन सा जो अल्फाबेट है वो किस चीज को डिफाइन करता है। देन हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, देन प्रिंट एस आई एंड देन एंड। द प्रोसेस फॉर मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, स्टार्टिंग, एंडिंग। यहाँ पे बॉइल वाटर इन केटल, एड कॉफी टू कप, एड बॉइलिंग वाटर, मिल्क रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसलिए हमने क्या करा, डायमंड को यूज करा, डायमंड सिंबल को हमने यहाँ पे यूज करा। इफ यस देन एड मिल्क। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ यस देन एड मिल्क एंड इफ नो देन शुगर रिक्वायर्ड। अब शुगर के लिए भी वी हैव एन ऑप्शन, तो इसलिए हमने डायमंड यूज करा, दैट इफ यस एड शुगर, इफ नो देन एंड। So this is how we use different symbols in flowchart. Now we will learn about advantages of flowchart. Clarity and understanding. Flowchart के अंदर हमें क्या मिलती है, clarity and understanding. Flowchart provide a visual representation of a process. Flowchart क्या करते हैं, हमें process की visual representation को show करते हैं. It makes easy to understand complex procedures or algorithms individuals. ये आसान बना देता है समझना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को या प्रोसीजर्स को या फिर एल्गोरिदम्स को टू द यूजर्स। नाउ कम्युनिकेशन, फ्लोचार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम टू ऑल दे वांट टू नो। मतलब हमारा फ्लोचार्ट जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी लॉजिक को कम्युनिकेट करने का हमारे सिस्टम के, और इससे हमें पता चल सकता है कि एक्चुअली हमें क्या पता होना चाहिए। इफेक्टिव एनालिसिस, with the help of a flow chart the problem can be analyzed more effectively। अगर हम फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिवली हम इसको एनालाइज कर पाते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फ्लो चार्ट सर्व एज गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। फ्लो चार्ट जो है वो गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन को जस्टिफाई करता है जो हमारे लिए कुछ कुछ पर्पसेस से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। Efficient coding. Flowcharts help programmers develop the most efficient coding because they can clearly see where the data is going to end up. मतलब flowcharts की मदद से जो डेवलपर्स हैं वो बहुत efficient coding कर पाते हैं क्योंकि वो हमें क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेटा है वो कहाँ जाके खत्म होने वाला है। Difference between algorithm and flowchart. Now, this is the last topic of our lesson, which says what is the difference between algorithm and flowchart. So, algorithm is a step-by-step procedure to solve the problem. Algorithm क्या है? Algorithm एक step-by-step procedure है किसी भी problem को solve करने का। Flowchart is a diagram created by different shapes to show the flow of data. Flowchart क्या है? Flowchart एक diagram है जिसे हम बनाते हैं using different shapes ताकि वो क्या कर सके, flow of data को दिखा सके। Algorithm is complex to understand. Algorithm समझने में थोड़ा सा complex है, but the flowchart is easy to understand. Flowchart में हम picture representation की वजह से उसको और easily समझ पाते हैं। In algorithm, plain text are used. इन एल्गोरिथम्स के अंदर हम नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है हमारा उसी को यूज करते हैं, बट इन फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड शेप्स आर यूज्ड। एल्गोरिथम इज इजी टू डीबग, एल्गोरिथम को हम आसानी से डीबग कर सकते हैं, बट अ फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डीबग। द एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, एल्गोरिथम के अंदर कोई रूल्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन।
बट अ फ्लो चार्ट फॉलो रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास रूल्स होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे हमें आंसर लेना है। तो दिस इज व्हाट कम्स इन फ्लो चार्ट। द एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अ फ्लो चार्ट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। फ्लो चार्ट को हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। So students, this was a whole chapter about algorithms and flowchart. I hope the lesson is clear to you. Do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video. Till then, take care. Bye bye.